Okay, should I start? Yes, sir. So, yesterday what we were discussing that this hardware is there and above it the kernel consisting of process management, memory management, file system management, device management modules, and above it application programs, system programs, they are there. And one of the system program we were discussing, that is shell. Shell is a interface between user and operating system. Okay, it is an interface, means OS provides its services corresponding to different modules, like in file system management module, creation of files, editing the files, removing the files. Okay, so by clicking you can do this thing if graphical user interface is there. If graphical user interface is not there, the commands are there. Commands through which you can take the services, those services like Pico, these editors, Nano editor. Okay, these utilities. इनको कहते हैं Nano और LS, CP, MV, LN. So these commands or utilities, you can say system command, system, you can say them as system programs also. Okay, so using these system programs, okay, this is again a system program. So these system programs, using these system programs, you take the services of the operating system, services of operating system. Okay, so shell is an interface between user and OS so that you can take the services of the operating system. And it is not a part, these commands or this shell, they are not part of kernel. Means with every kernel, with every operating system, the shell is given. Obviously, once a user built a software, he will give the interface to use that software. So with every operating system, either graphical user interface or command interpreter or command line interface, means it will be provided by the manufacturer. Okay, by the software developer, the interface will be given, but this interface is not the part of kernel. It is a user space program. It is not part of kernel. It is user space program. Okay, means you can write your own C program if you don't want to use bash shell or C shell or whatever shells are there in /bin directory. Okay, these commands are also there in /bin directory. These are the executable names. You will see all these commands or all these programs in green color. They are executables of C program. Means somebody has written this C program for shell or for this command, this command. Okay, cat command. You will also write system programs for this, C programs for this. In the lab, you will write those C programs. So if you want to use your own C programs, you can use them also. Okay, means you have to, means while compiling, if you want to change the name of object file, you can name it by any name. Like UMA I have written, and in first.c I have written the cat code. So whatever cat does, UMA will does the same thing. UMA command will does the same thing. And in Linux, the executables, they are not identified by the extension. Rather, they are identified, executables are identified by a magic number that is there in the
means type of file. Any type of file is identified by the magic number that is there in file header. Okay, and we also discussed one more thing, that all the file types, they are not supported by the kernel. Okay, only few file types. We will discuss again this thing in the lab or in some other part of the syllabus. Ki all file types, they are not supported by the kernel. Only few file types like executable, directory, pipe, okay, some device file. These are supported by the kernel, okay, Linux kernel, and in Windows kernel also few file types are supported. And Windows identify the file type by its extension, and Linux identifies by a magic number that is there in the file header. Okay. Now we were discussing about shell. So it is not a part of kernel. It is a user space program. You can write your own program. Means in the lab first you will build these commands, and after few things, means after a few labs, you will be able to write the C program for shell also. You will be able to write C program for shell also, and that some students take it as a lab project, because in the lab we will give one project. So some students actually write C program for shell. Okay, means it is not necessary to use the shell provided with the operating system. You can, because it is not part of OS. That's why you can use your own program and use it as your shell. Okay, so one more thing I want to tell here, that these commands are there, na? These commands, utility system programs. Some of these commands are there. Most of these commands are there in /bin. Most of these commands are there in /bin or /sbin. Means in some directory, if their executable is kept, if they are written as a different C program. If these commands are written as a different C program, then we call them as external commands. External commands of shell. Okay. And if they are written, their code, their C program is written inside the shell code. आप shell का C program लिख रहे हो. Suppose उसी में आपने CP का कोड लिख दिया, तो उससे फिर CP को हम इंटरनल कमांड बोलेंगे. बल्कि सीपी का कोड इसमें नहीं होता, सीपी एक्सटर्नल कमांड होता है, ठीक है. लेकिन आपने अपनी शेल बनाई, अपना सी प्रोग्राम बनाया, उसमें सीपी को यहां से ना लेके, इसका कोड यहां से एक्सटर्नल कमांड ना लेके आप वो कोडिंग इसी प्रोग्राम के अंदर कर देंगे, तो उससे कहेंगे हम इंटरनल कमांड. ठीक है, लाइक इको cd, they are examples of internal command. Change directory is an internal command. Okay. हेलो सर. Yes. सर एक बार और बता दीजिए एक्सटर्नल कमांड्स और इंटरनल कमांड्स. कौन हो आप? सर अमन. एक्सीलेंट अमन. अमन, ये सी प्रोग्राम आप लिख रहे हो, ठीक है. अब इस सी प्रोग्राम में शेल का जब सी प्रोग्राम लिखोगे, थोड़े दिन में आपको क्लियर हो जाएगा, मतलब 1 महीने के अंदर, कि कैसे शेल का सी प्रोग्राम लिखेंगे. ठीक है, तो अगर आप कमांड की कोडिंग, कमांड क्या है, सीपी क्या है, सीपी आप देखोगे थोड़े दिन बाद कि इसमें हम सीपी F1 F2 का कोड लिखना चाहते हैं, तो ओपन करेंगे फाइल F1 को, ओपन करेंगे फाइल F2 को, रीड करेंगे F1 से अप टू एंड ऑफ फाइल, राइट करेंगे F2 में, और फिर दोनों फाइल्स को क्लोज कर देंगे. ठीक है ना. ये सिस्टम कॉल्स है. ये सिस्टम कॉल्स क्या होती है, ये आएगा अभी एक लेक्चर के बाद. ठीक है, तो आपने जो है, ये एक सी प्रोग्राम है, और शेल का भी एक सी प्रोग्राम है, जो कि लिखना आ जाएगा आपको 1 महीने बाद. तो अगर ये कोड आप इसी प्रोग्राम में डाल रहे हो, मतलब कि शेल क्या करता है, शेल पे आप सीपी लिखते हो ना, सीपी F1 F2, तो वो ये स्ट्रिंग जो आप देते हो, इसको पार्सिंग करता है, और एक नया प्रोसेस बना के उसमें इसका कोड एग्जीक्यूट करता है. सीपी का उठा लेता है, सीपी का कोड /bin से
स्लैश बिन से सीपी का कोड उठा लेता है और इस नए प्रोसेस में उसको एग्जीक्यूट करता है। नए प्रोसेस क्रिएट करने के लिए वो फॉर्क करता है, अगेन इट इज ए सिस्टम कॉल, और फिर एग्जीक्यूट करता है सीपी का कोड। और ज्यादातर कमांड्स के केस में ऐसा ही करता है। मतलब अगर एग्जीक्यूटेबल्स जो है, एग्जीक्यूटेबल्स को शेल इस वे में एग्जीक्यूट करता है फॉर्क एग्जेक, तो वो क्या है, एक्सटर्नल कमांड। मतलब वो अलग से रखे हुए हैं स्लैश बिन में, ये आपको नहीं मिलेंगे स्लैश बिन में, सीडी नहीं मिलेगा आपको। आप स्लैश बिन में जाके देखोगे, यू विल नॉट फाइंड सीडी, क्योंकि सीडी को वो उठाता नहीं है कहीं से, ये फॉर्क एग्जिट नहीं करेगा उसके लिए। अगर यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट पे सीडी लिखा हुआ है तो सी प्रोग्राम में आप लिखोगे कि इफ, मतलब ये आर्गुमेंट 1 इक्वल्स टू सीडी, तो ये सी कोड एग्जीक्यूट हो जाए। समझ गए? जैसे आप सीपी को सपोज इंटरनल बनाना चाहते हो अपनी शेल में, तो आप क्या लिखोगे कि अगर जो आपका जो यहाँ पे आर्गुमेंट्स हैं वो सीपी है, तो ये कोड एग्जीक्यूट हो जाए। अपने सी प्रोग्राम में ही ये बात लिख दोगे, अलग से नहीं उठाओगे उसे, फॉर्क एग्जिट नहीं करोगे, फिर एक नया प्रोसेस क्रिएट नहीं करोगे उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। एक्सटर्नल कमांड्स को शेल एक नया प्रोसेस क्रिएट करके एग्जीक्यूट करता है, इंटरनल कमांड्स को खुद के कोड में एग्जीक्यूट करता है। गॉट सर। लेकिन ये चीज और क्लियर हो जाएगी क्योंकि फॉर्क एग्जीक्यूट सब आप पढ़ोगे ना, सारी प्रोग्रामिंग आप करोगे, तो धीरे धीरे अभी मैंने बता दिया जस्ट आपको, एक्सटर्नल कमांड्स विच आर आउटसाइड द शेल कोड, इंटरनल कमांड्स विच आर रिटन इनसाइड द शेल कोड। सीडी आपको नहीं मिलेगा स्लैश बिन में ढूंढोगे तो, लेकिन सीडी कमांड है ना, मतलब स्लैश बिन में, स्लैश एस बिन में, स्लैश यूएसआर स्लैश एस बिन में किसी में नहीं मिलेगा। एक्सटर्नल कमांड्स को शेल कहाँ सर्च करता है? एक्चुअली हमारा जो फाइल सिस्टम होता है उसमें इस तरह से, ये थोड़ा अभी नोट्स में नहीं है मतलब, लेकिन ये काम का, ये तो हमेशा याद रखना है जो मैं लिख रहा हूँ अभी लैब के पर्पज से, हमेशा ही आपको ये सब चीजें पता होनी चाहिए कि रूट में, रूट डायरेक्टरी में कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज होती है, बिन, टेम्प, टेम्पररी, बूट, यूएसआर, होम, ठीक है, देव। ये फर्स्ट लैब में फर्स्ट लैब का एक तरह से ये डिस्कशन है, थोड़ा सा मतलब थ्योरी छोड़ के थोड़ा सा लैब की तरफ डिस्कस कर रहा हूँ कि फर्स्ट लैब के डिस्कशन में भी आप देखोगे कि रूट डायरेक्टरी में ये सारी डायरेक्टरीज कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज होती हैं। जैसे डिवाइस, देव डायरेक्टरी में डिवाइस फाइल्स होती है, लिनक्स में सारे डिवाइसेस एज फाइल्स ट्रीट होते हैं, तो देव डायरेक्टरी में सारे डिवाइसेस का फाइल नेम्स होता है, ठीक है। होम में जनरली एडमिनिस्ट्रेटर जो आपको अकाउंट बना के देता है, तो आप जो है होम में आते हो, जैसे स्लैश होम स्लैश ओएस बॉक्सेस, तो आप जिस डायरेक्टरी में बाय डिफॉल्ट लॉग इन करते हो ना, यूजर नेम और पासवर्ड एंटर करने के बाद, उससे आपकी होम डायरेक्टरी कहते हैं। ये होम अलग है, वो होम डायरेक्टरी अलग है। होम डायरेक्टरी मीन्स ये कैपिटल में लिख दिया, जिसमें आप बाय डिफॉल्ट लॉग इन करते हो, दैट इज योर होम डायरेक्टरी, ठीक है। बूट डायरेक्टरी में कुछ बूटिंग से रिलेटेड फाइल्स होता है, बिन में सारे कमांड्स होते हैं, कुछ कमांड स्लैश एस बिन में भी रहते हैं, कुछ कमांड्स आपके स्लैश यूएसआर स्लैश बिन या स्लैश यूएसआर स्लैश एस बिन में भी रहते हैं, ठीक है। अब सपोज आप ओएस बॉक्सेस में करंटली हो, तो ओएस बॉक्सेस में आपने एक डायरेक्टरी बना रखी है ओएस और एक फाइल है F1, ठीक है। और ये F1 को आपको इधर कॉपी करना है ओएस में। आप कहाँ पे हो करंटली? ओएस बॉक्सेस में। यू आर करंटली, योर PWD इज स्लैश होम, आपने जस्ट लॉग इन किया है, तो आप जो है अपनी होम डायरेक्टरी में आपने लॉग इन किया, ठीक है, स्लैश होम स्लैश ओएस बॉक्सेस।
तो आप जस्ट लॉग इन किए हो तो आप पीडब्ल्यूडी करके देखोगे तो आपकी होम डायरेक्टरी दिखाएगा, या आप अगर कहीं भी हो फाइल सिस्टम में और इको डॉलर होम करोगे, आपको पता करना है कि मेरी होम डायरेक्टरी क्या है, तो जस्ट लॉग इन करके पीडब्ल्यूडी कर लो। लेकिन सपोज आपने सीडी रूट कर दिया, इसके बाद सीडी रूट कर दिया तो आप रूट पे हो, आप एलएस करोगे तो आपको क्या दिखेगा, ये सारी डायरेक्टरीज दिखेंगी, है ना, एलएस करने से। लेकिन आप अपनी होम डायरेक्टरी में वापस जाना चाहते हो, तो वैसे तो होम डायरेक्टरी में वापस जाने के लिए आप सीडी एंटर कर दोगे तो अपनी होम डायरेक्टरी में चले जाओगे। सीडी विदाउट एनी, CD डॉट अगर कर दोगे तो होम में चले जाओगे? नहीं बेटा, सीडी एंटर, अच्छा सीडी एंटर, डॉट नहीं करना। सर, 2 डॉट से डबल डॉट? डबल डॉट से ऊपर जाते हैं। डबल डॉट से सर प्रीवियस डायरेक्टरी में नहीं जाते? नहीं, ऊपर जाते हैं, प्रीवियस डायरेक्टरी में नहीं जाते। मतलब उससे पीछे वाली डायरेक्टरी जो होती है, जैसे ओएस अब बॉक्स में है तो होम। समझा दूंगा। आप जैसे ओएस बॉक्सेस में हो और सीडी डॉट डॉट करोगे ना तो होम पे चले जाओगे। हाँ सर, वही बोल रहा था। तो इस प्रीवियस डायरेक्टरी मत बोलो। प्रीवियस डायरेक्टरी तो मान लो मेरी अब सीडी स्लैश किया और सीडी एंटर किया तो मेरा कौन सी हो गई, पीडब्ल्यूडी ये हो गई। अब हाँ मैं सर। सीडी डॉट डॉट करूंगा तो रूट पे नहीं जाऊंगा ना, होम में होम जाऊंगा। पे हाँ सर, तो मतलब पेरेंट डायरेक्टरी, नॉट प्रीवियस डायरेक्टरी, पेरेंट डायरेक्टरी। पेरेंट डायरेक्टरी। ठीक है सर? हाँ बेटा। सर ये कमांड से एक बार फिर से बता देंगे, सीडी जो है ये? सीडी चेंज डायरेक्टरी के लिए होता है, ये बताता रहूंगा मैं दोबारा दोबारा। अभी मैं कुछ और बता रहा, मैं कहाँ चला गया, एक सर मिनट। अभी इंट्रोडक्शन चल रहा है, मतलब इंट्रोडक्शन चल रहा है, लेकिन इंट्रोडक्शन की नोट्स फाइल ही चल रही है, नोट्स फाइल ही चल रही है। इंटरनल कमांड एक्सटर्नल कमांड बताया, वहां तक नोट्स फाइल ही चल रही थी। अब जहां से मैंने ये ट्री बनाया वहां से फर्स्ट लैब में वैसे भी मुझे पढ़ाना ही है, ठीक है, तो थोड़ा बहुत बता देता हूँ, इससे आपको आप कर भी सकते हो सिस्टम पे और दिखा भी दूंगा मैं करके। तो आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए, सिर्फ सुनिए ध्यान से कि रूट में कुछ स्टैंडर्ड डायरेक्टरीज होती है। इनमें अलग अलग, जैसे कि देव में आपके क्या फाइल्स होंगी, डिवाइस फाइल्स होंगी आपकी। ईटीसी एक डायरेक्टरी होती है, उसमें एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटीज रहता है। तो ये सारे एग्जांपल मैं दिखाऊंगा आपको, मतलब प्रैक्टिकल में दिखाऊंगा कि कौन सी एडमिनिस्ट्रेटिव यूटिलिटीज होती है। मतलब ईटीसी में जो भी फाइल्स होती है ना बेटा, उसे सिर्फ रूट मॉडिफाई कर सकता है, सुपर यूजर ही मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, अभी तो आप सुडो करके सुपर यूजर बन जाते हो अपने लिनक्स पे वर्चुअल टूलबॉक्स में, तो उबंटू में तो सुडो कर देते हैं ना और सुपर यूजर बन जाते हैं। तो सुडो करके आप इस फाइल इन इधर की फाइल्स को मॉडिफाई कर सकते हो, एक्सेस तो वैसे भी कर सकते हो। लेकिन जो हमारे एक्चुअली मल्टी यूजर सिस्टम है ना लिनक्स, मल्टी यूजर की तरह तो हम यूज ही नहीं करते आजकल। तो मल्टी यूजर सिस्टम में क्या होता है कि इसके अंदर जैसे ईटीसी के अंदर एक फाइल होता है पास डब्ल्यूडी, आप पास डब्ल्यूडी खोल के देखना, या फिर मैं दिखा दूंगा आपको लैब में वापस लूंगा मैं डिस्कशन, ठीक है। तो पास डब्ल्यूडी फाइल जो है खोल के दिखाऊंगा तो उसमें आपको वो मिलेगा कि व्हाट इज यूजर नेम, जैसे यूजर नेम, पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड ब्लैंक रहेगा, ठीक है। उसके बाद में यूआईडी, जीआईडी, लॉगिन शेल एंड होम डायरेक्टरी। तो ठीक है, यूज जैसे कि ओएस बॉक्सेस एक अकाउंट बनाया है एडमिनिस्ट्रेटर ने, तो ओएस बॉक्सेस कॉलन खाली जगह रहेगी, पासवर्ड कुछ भी नहीं रहता इधर स्टोर्ड, कॉलन यूआईडी जो भी है, जीआईडी, ठीक है। फिर लॉगिन शेल कौन सी है, स्लैश बिन स्लैश बैश, ठीक है, कॉलन होम डायरेक्टरी स्लैश होम स्लैश ओएस बॉक्सेस। तो एक्चुअली अगर सपोज आप मल्टी यूजर सिस्टम में काम कर रहे हो, मतलब एक ही पीसी पे आप सारे बच्चे लैब करते हो मान लो, तो एडमिनिस्ट्रेटर को क्या करना पड़ेगा, सबके अकाउंट बनाने पड़ेंगे, सबके अकाउंट
बनाने पड़ेंगे, उसके लिए कमांड भी है और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से भी वो बना सकता है। तो सबको एक ग्रुप में रख लेगा, वो जीआईडी सेम कर देगा, यूआईडी सबका डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम ही देता रहता है एक्चुअली, और लॉगिन शेल सबकी यही रहेगी बाय डिफॉल्ट, जो भी लॉगिन शेल रखना चाहेगा वो रख सकता है एडमिनिस्ट्रेटर, और सबको एक होम डायरेक्टरी देगा, क्योंकि आप सब एक सिस्टम पे काम कर रहे हो। तो स्लैश होम स्लैश सपोज क्या है आपका क्लास, CSCB स्लैश आपका एनरोलमेंट नंबर से वो सबको अपनी अपनी होम डायरेक्टरी दे सकता है। तो जब भी आप फिर लॉगिन करोगे उस मल्टी यूजर सिस्टम पे, अपना यूजर नेम पासवर्ड दोगे, तो आप किस डायरेक्टरी में जाओगे, स्लैश होम स्लैश CSCB स्लैश आपका रोल नंबर रजिस्ट्रेशन नंबर, उस डायरेक्टरी में आप लॉगिन करोगे। ठीक है, समझ गए? तो ये सारी एंट्री कहाँ जाएगी, मतलब मेरा कहने का मतलब है पास WD को कौन मॉडिफाई कर रहा है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस से भी कर रहा है, तो वो एंट्री पास WD में चली जाएगी जैसे ही एडमिनिस्ट्रेटर कोई यूजर क्रिएट करेगा। आप खुद भी अपने सिस्टम पे यूजर क्रिएट करके देख सकते हो, तो वो एंट्री पास WD में चली जाएगी, क्योंकि sudo से आप सुपर यूजर प्रिविलेजेस ले लेते हो ना लिनक्स में, उबंटू में। ठीक है, इसी तरह सर्विसेज एक फाइल होता है जिससे भी एडमिन, तो ये जो मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें जितनी भी फाइल्स हैं उन्हें सुपर यूजर या एडमिनिस्ट्रेटर मॉडिफाई करता है। ठीक है, मतलब एक यूजर होता है रूट, और रूट का सुपर यूजर का यूआईडी जीआईडी क्या होता है, 0। यूआईडी जीआईडी जिसका 0 होता है उसे हम सुपर यूजर कहते हैं। ठीक है, तो यूआईडी एंड जीआईडी जिसका 0, वही इसको इन फाइल्स को मॉडिफाई कर सकता है। ठीक है, डिवाइस फाइल्स के एग्जांपल हम देखेंगे, अभी तो मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, फिर वापस देखेंगे। ठीक है, इधर हमारी सारे एग्जीक्यूटिबल्स रखे हुए हैं इन डायरेक्टरीज में। ठीक है, तो अभी मैं बता ये रहा था कि एक्चुअली आप सपोज करो, हाँ मैं ये बताना चाह रहा था ना आपको कि आप OS बॉक्सेस में हो और आपको ये फाइल F1 यहाँ पे कॉपी करनी है, OS के अंदर कॉपी करनी है, OS डायरेक्टरी है और आप OS बॉक्सेस में हो, तो आप क्या लिखोगे, CP, आप OS बॉक्सेस में हो, आपको ये फाइल F1 यहाँ कॉपी करनी है। CP के आगे क्या लिखूं, अमन? यस सर। क्या लिखूं? नो आइडिया सर। है सर मुझे नहीं पता सर। तो कोई और लड़का जो अच्छा है लिनक्स में ऑलरेडी, सर क्या करना है, एक बार रिपीट करना सर। आप OS बॉक्सेस में हो, करंट डायरेक्टरी आपकी OS बॉक्सेस है, इको डॉलर होम करके कहीं भी देखोगे तो आपको यही दिखाएगा, स्लैश होम स्लैश OS बॉक्सेस, चाहे आप रूट पे हो तब भी यही इको डॉलर होम, क्योंकि होम जो है वो बाद में बता दूंगा, चलो अभी मैं सिंपली ये एग्जीक्यूटिबल्स के बारे में कुछ बताना चाहता था इसलिए ये सब बताया। तो CP एक एग्जीक्यूटिबल है, और फिर F1 F2 लिखते हैं ना, तो F1 को मुझे यहाँ कॉपी करना है OS के अंदर, ये लिखूंगा ना CP F1 OS। हाँ सर। ठीक है, तो क्या होगा, F1 जो है ये क्योंकि डायरेक्टरी है ना OS, तो OS के अंदर कॉपी हो जाएगी, OS के अंदर F1 आ जाएगा। ठीक है, सर OS के अभी कहाँ अंदर है F1? अभी यहाँ पे है, यहाँ पे तो रहेगा ही बेटा, CP यूज किया है ना, कॉपी यूज किया है, कॉपी यूज किया है, तो F1 आप OS बॉक्सेस में हो ना, तो F1 हाँ। आपकी यहाँ भी चली जाएगी क्योंकि यहाँ कॉपी हो जाएगी ना। अगर आप इसको F2 नाम से कॉपी करना चाहते हो यहाँ पे, अच्छा तो ठीक है सर, OS समझ, स्लैश बेसिकली F2। OS एक दूसरी डायरेक्टरी है जो OS बॉक्सेस के अंदर ही है। हाँ, ठीक है तो ठीक है। मैं बताना ये चाहता था कि F1 नाम से कॉपी करना चाहते हो तो सिंपली OS लिखोगे, F2 नाम से करना चाहते हो तो OS स्लैश F2 लिखोगे। ठीक है, अब यस ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये जो हमने पाथ नेम दिए फाइल्स के, जैसे मुझे F1 मान लो
F1 मान लो मुझे OS boxes, सॉरी F2 मैं OS boxes में हूं और F2 मुझे OS boxes में कॉपी करनी है। OS boxes में मैं ऑलरेडी हूं, F2 मुझे कॉपी करनी है OS boxes में, तो मैं क्या लिखूंगा, CP OS/F2 और सपोज F3 नाम से कॉपी करनी है तो F3, तो ये F3 यहाँ आ जाएगी। ठीक है, तो मतलब मुझे या तो रिलेटिव, यहाँ पे जो मैं आर्ग्यूमेंट्स देता हूँ, फाइल नेम आर्ग्यूमेंट्स जो कमांड के साथ क्या रहता है, फाइल नेम आर्ग्यूमेंट्स कमांड के साथ दो चीजें रहता है, एक तो ऑप्शंस जैसे कि WC-L, तो ये लाइन काउंट करेगा, ठीक है, LS-L, तो ये लॉन्ग लिस्टिंग करेगा LS के, LS-I, तो ये सिर्फ आइनोड नंबर बताएगा फाइल का, ठीक है, और LS करेंगे सिंपली तो फाइल नेम शो करेगा। तो मतलब कमांड के साथ एक तो होता है ऑप्शंस और दूसरा होता है फाइल नेम आर्ग्यूमेंट्स। तो फाइल नेम आर्ग्यूमेंट्स जो आप देते हो कमांड के साथ, वो आइदर रिलेटिव पाथ नेम होना चाहिए, रिलेटिव मींस रिलेटिव टू PWD। ये जो मैंने पाथ नेम्स दिए ये क्या किए, रिलेटिव टू PWD प्रोवाइड किए, है ना, तो इनको हम कहते हैं रिलेटिव पाथ नेम। मतलब शेल जब इसको एग्जीक्यूट करेगा ना CP को, तब वो खुद कंप्लीट कर लेगा क्योंकि आपने रिलेटिव पाथ नेम दिया है ना, तो वो उसको फाइल मिल जाएगा क्योंकि इट विल अपेंड दिस PWD टू रिलेटिव पाथ नेम टू फॉर्म द एब्सोल्यूट पाथ नेम। इज इट ओके? इसके भी नोट्स भेज दूंगा, जो मैं ये चीजें बता रहा हूँ इसके भी नोट्स मैं आपको भेज दूंगा। सर लेकिन हम वो ऐसे नहीं करते कि हम पहले फाइल का नाम डालते हैं और फिर पूरी पाथ डालते हैं, एब्सोल्यूट पाथ मेंशन करते हैं। एब्सोल्यूट पाथ मेंशन करना, आपको इधर एब्सोल्यूट पाथ देना है या रिलेटिव पाथ देना है, एक पाथ देना है फाइल नेम आर्गुमेंट्स के लिए। आइदर यू हैव टू गिव द रिलेटिव पाथ नेम और एब्सोल्यूट पाथ नेम। सपोज मैं passwd कॉपी करना चाहता हूँ OS बॉक्सेस में, OS बॉक्सेस में passwd को कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं क्या लिखूंगा, cp/etc/passwd, तो ये हो गया इसका कंप्लीट पाथ नेम। वो मुझे देना ही पड़ेगा क्योंकि मैं OS बॉक्सेस में हूँ। इसका रिलेटिव लिखना ज्यादा मुश्किल है, अगर इसका रिलेटिव लिखना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, रिलेटिव लिखना तो और मुश्किल है, ये इधर नहीं है ना, ये तो इस डायरेक्टरी में है। हाँ तो सर, उस केस में मैं एब्सोल्यूट पाथ नेम दूंगा। और सपोज मैं इस फाइल को passwd को OS बॉक्सेस में कॉपी करना चाहता हूँ, तो जिस भी नाम से कॉपी करना चाहता हूँ, अगर मैं passwd नाम से ही कॉपी करना चाहता हूँ तो फिर नेक्स्ट आर्ग्यूमेंट मेरा क्या रहेगा, passwd। तो ये passwd क्या है, रिलेटिव पाथ नेम, ये क्या है, एब्सोल्यूट पाथ नेम। अगर सपोज मैं इसको OS बॉक्सेस में हूं लेकिन OS के अंदर passwd कॉपी करना चाहता हूं, तो OS/passwd, या मैं किसी और नाम से कॉपी करना चाहता हूं F3 नाम से, तो OS/F3, तो यहाँ पे एक F3 क्रिएट हो जाएगी और उसके अंदर कंटेंट्स किसके रहेंगे, /etc/passwd के। तो आपको मैं ये फाइल भी भेज दूंगा, एक जैसे इंट्रोडक्शन की फाइल है ना, एक ऐसी फाइल भेज दूंगा, उसमें येलो कर दूंगा जहां पे ये पोर्शन जो मैंने बताया इस लाइन के नीचे वो लिखा हुआ होगा कि ये ट्री स्ट्रक्चर होता है और आइदर यू हैव टू गिव द एब्सोल्यूट पाथ नेम और रिलेटिव पाथ नेम विद द कमांड नेम। जो कमांड के साथ ऑप्शंस रहेगा, या ऑप्शंस तो डायरेक्टली दोगे, जो भी ऑप्शंस का यूज है वो तो लैब में चलेगा, डिफरेंट कमांड डिफरेंट ऑप्शंस, है ना। लेकिन फाइल नेम आर्गुमेंट्स जो आप देते हो, दे शुड बी आइदर रिलेटिव पाथ नेम और एब्सोल्यूट पाथ नेम। एब्सोल्यूट पाथ नेम, कंप्लीट पाथ नेम एक ही बात है, ठीक है। तो एब्सोल्यूट पाथ नेम, कंप्लीट पाथ नेम किसे कहते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम रूट, ठीक है। और रिलेटिव पाथ नेम किसे कहते हैं बेटा, रिलेटिव टू PWD। इज इट ओके, इज इट ओके अमन? अमन बेटा, सर मैंने लिनक्स यूज नहीं करा कभी, मुझे कुछ समझ नहीं आया। तो भाई यूज किया होता तो फायदा ही क्या होता पढ़ने का।
पढ़ने का फायदा ही क्या होता है अगर यूज ही कर लिया तो। सर तब भी मुझे समझ नहीं आएगा, पढ़ूंगा बुक से एक बार। बुक से मत पढ़ना, बुक से मत पढ़ना। कहाँ से पढ़ूं फिर? इसका बोला ना, इसके नीचे का जो पढ़ाया, इसका नीचे का जो बताया, इस लाइन के नीचे का, इसका भी एक फाइल भेज दूंगा। और पढ़ने का काम नहीं है ये करने का काम है। कुछ चीजें करने से ही आती है ना। यस सर, एक्सपीरियंस। यस सर। ये करने का काम है। तो करेंगे, हम लैब में करेंगे, मैं दिखाऊंगा आपको कर करके कमांड्स। लेकिन आप करो तो ये वर्चुअल टूल बॉक्स डाउनलोड कर लेना। शायद मेरे को लगता है VMware भी डाउनलोड कर सकते हो, या ये Oracle VM वर्चुअल बॉक्स, ये फ्री है। VMware वैसे खरीदना पड़ता है, लेकिन 1 महीने का ट्रायल वर्जन मिल जाता है, तो उसके अंदर उबंटू डाल लेना, या आ जाओगे तो सब डाल ही देंगे। ठीक है, फिर कमांड्स करने मैं दिखाऊंगा ना, कमांड्स करके लैब में नेक्स्ट वीक ये सारे कमांड चला चला के दिखाऊंगा। लेकिन जस्ट आपको एक नॉलेज दे रहा था कि एब्सोल्यूट पाथ नेम मतलब, इधर से मैंने आपको सिर्फ इतना नॉलेज दिया कि ये ट्री स्ट्रक्चर होता है, और एब्सोल्यूट पाथ नेम क्या होता है, और रिलेटिव पाथ नेम क्या होता है। इतना तो आपको समझ में आया ना। अमन को नहीं आया होगा, क्योंकि अमन ने फर्स्ट ईयर में सी लैब नहीं किया, लेटरल एंट्री है, लेकिन बाकी बच्चों को समझ में आया ना। यस सर। हाँ Yes, तो sir. ये ठीक है बेटा, तो ये आपका बात हो गया। लेकिन अब मेरा क्वेश्चन ये है कि हमने बताया क्यों ये सब, मैंने बीच में वैसे भी बताना पड़ता है, लैब में बताना ही पड़ता, फाइल भी भेज दूंगा ये जहां ये सब लिखा है। लेकिन बताया अभी क्यों बताया, अभी इसलिए बताया कि इसके साथ मुझे क्यों नहीं देना पड़ रहा एब्सोल्यूट पाथ नेम या रिलेटिव पाथ नेम। ये सब का भी तो एब्सोल्यूट पाथ नेम भाई रिलेटिव पाथ नेम है क्या ये सीपी का? ये सीपी का रिलेटिव पाथ नेम है क्या ओएस बॉक्सेस के अंदर? नहीं ना। सीपी ओएस बॉक्सेस में नहीं रखी ना, WC LS क्या ये ओएस बॉक्सेस में रखा है? नहीं रखा, तो ये रिलेटिव पाथ नेम नहीं है, एब्सोल्यूट पाथ नेम भी नहीं है, क्योंकि ये एक्चुअली इन डायरेक्टरीज में है, इनमें है ना ये फाइल्स, एग्जीक्यूटिबल्स यहाँ 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 होते हैं ज्यादातर। ठीक है ना, तो ये एब्सोल्यूट पाथ नेम भी नहीं है। तो मुझे कमांड्स के साथ एब्सोल्यूट मतलब कमांड्स जो exe के साथ मुझे एग्जीक्यूटेबल फाइल, क्योंकि मैंने बताया ना exe है सब ग्रीन कलर में मिलेगा, जैसे एरोटॉप ग्रीन कलर में मिलता है ना आपको, उसी तरह ये सब ग्रीन कलर में मिलेंगे आप इन डायरेक्टरीज में जाओगे तो। ठीक है, तो इनके साथ हमें एब्सोल्यूट या रिलेटिव पाथ नेम नहीं देना पड़ता, क्योंकि शेल खुद सर्च करता है इन फाइल्स को। शेल जो है खुद सर्च करता है इन फाइल्स को। कहां पे सर्च करता है किसी को पता है? किन डायरेक्टरीज में शेल सर्च करता है? शेल खुद सर्च करता है इन फाइल्स को, किन डायरेक्टरीज में सर्च करता है किसी को पता है? नो सर। जावा आपने पढ़ी, आपको पता होगा, जावा कर चुके ना आप? यस सर। हाँ, तो विंडोज पे किया था, लिनक्स पे किया था? विंडोज पे किया था, तो भी जावा सी को कमांड इंटरप्रेटर सर्च करता है ना। कहाँ सर्च करता है? बेल में। किसमें? पाथ होता है ना बेल में। एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। हु इज दिस स्टूडेंट? आर्यन आई थिंक। आर्यन। कल क्या किया, रिलेशनशिप का मतलब क्या बताया? रॉय सर की क्लास में आर्यन क्या बताया था तुमने? सर मैंने नहीं बताया था कुछ। कोई और था, वो कोई और था। अमन ही होगा वो पक्का। नहीं सर, मैं नहीं करता। हाँ सर अमन था। अमन ही रिकॉर्डिंग, होगा पक्का। हाँ वॉइस चेक करा लेना, सबसे बड़े पता लग जाएगा। हाँ सर, अमन ही था सर, अमन। अमन ही था वो। ठीक है, मैं व्हाट्सएप का स्क्रीनशॉट दे देता, पता लग जाएगा कौन था।
नहीं, हम सर्च नहीं करेंगे। सर आपसे नहीं आ रहा सर। सर्च नहीं करेंगे क्या? छोटा मोटा नहीं सर्च करते। लेकिन ऐसे मजाक ज्यादा मत करो। सर डांट काफी दिया, जिसने करा था उसे डांट दिया। किसने डांटा? तुमने? यस सर। हाँ सर, खुद को डांटा वो। खुद को डांटा इसने। शीशे में देख के सर डांटना। चलो 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 बच्चों, हम वापस पढ़ाई पे आ जाए। So actually shell searches for executables in the directories declared in this variable. ये सब क्या है? shell के खुद के वेरिएबल्स हैं। path, home, ये कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूं, देखो मैं pwd, ये सारे वेरिएबल्स आपको देखने हैं ना, प्रीडिफाइंड वैल्यूज इन वेरिएबल्स की। तो सेट कमांड होता है, सेट कमांड से आप देख सकते हो। ठीक है, तो एक्चुअली ये पाथ वेरिएबल में डायरेक्टली मतलब आपको सेट कमांड से तो सारे वेरिएबल्स लिस्ट होंगे, लेकिन आपको सिर्फ पाथ का वैल्यू देखना है, इस शेल वेरिएबल का वैल्यू देखना है। तो आप क्या लिखोगे? इको स्पेस $path। तो एक्चुअली ये पाथ तो ऑलरेडी डिफाइंड शेल वेरिएबल है, इन्वायरमेंट वेरिएबल कहते हैं हम इसे। और अगर आप खुद के शेल वेरिएबल बनाना चाहते हो तो ऐसे बना सकते हो, x = 5। ठीक है, तो इसमें जगह नहीं है कहीं भी, x = 5 में कोई स्पेस नहीं कहीं भी। ठीक है, तो x आपका एक शेल वेरिएबल हो गया और उसकी वैल्यू क्या हो गई? 5। अब इसकी वैल्यू देखना चाहते हो तो आप क्या लिखोगे? इको $x। तो ये क्या शो करेगा? 5। ठीक है, इसी तरह पाथ का वैल्यू क्या आएगा? आप पाथ लिखोगे तो इको $path/bin :/sbin करके देखना ये सब, usr/bin /usr/sbin : तो ये जितनी डायरेक्टरीज यहाँ डिक्लेयर्ड है इनमें शेल सर्च करता है। और अगर सपोज आपने लिख दिया cpa, तो cpa को सर्च करेगा शेल, cpa f1 f2। ठीक है, आप गलती से ए लिख दिया आपने, तो वो क्या मैसेज देगा आपको? वो सर्च करेगा सारी डायरेक्टरीज में cpa के लिए, उसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो कमांड नॉट फाउंड, इट विल गिव यू ए मैसेज कमांड नॉट फाउंड। ठीक है, तो ये डिस्कशन से हमें ये मेनली मैं ये बताना चाहता था। वैसे तो ये फर्स्ट लैब का डिस्कशन है, फर्स्ट लैब का डिस्कशन भी है, इसकी फाइल भी मैं आपको रख दूंगा टीम्स पे, उस पोर्शन को येलो कर दूंगा जहां ये सब डिस्कस्ड है। लेकिन मैं ये बताना चाहता था कि जो फाइल नेम आर्गुमेंट्स है उसको आपको रिलेटिव पाथ नेम, एब्सोल्यूट पाथ नेम देना होता है। लेकिन एग्जीक्यूटेबल्स जो होती है वो शेल, जैसे जावा सी है तो जावा सी को खुद सर्च करेगा शेल। ठीक है, लिनक्स में भी पाथ वेरिएबल में सर्च करता है, विंडोज में भी एग्जीक्यूटेबल्स को विंडोज का कमांड इंटरप्रेटर जो है इसी में सर्च करता है। पाथ वेरिएबल में जो डायरेक्टरीज डिक्लेयर्ड है उन्हीं डायरेक्टरीज में सर्च करता है। शेल सर्चेस फॉर एग्जीक्यूटेबल्स इन द डायरेक्टरीज डिक्लेयर्ड इन द पाथ वेरिएबल। लेकिन अंतर इतना है कि डॉस के अंदर, विंडोज के अंदर करंट डायरेक्टरी में भी सर्च करता है, लेकिन हमारे लिनक्स में करंट डायरेक्टरी में सर्च, जैसे जावा सी, आप उसी डायरेक्टरी में चले जाओ जावा सी जिसमें है, तो जावा सी चल जाएगा। ठीक है ना, वो डायरेक्टरी चाहे पाथ वेरिएबल में हो चाहे ना हो, आपका जावासी चल जाएगा अगर आप जावासी वाली डायरेक्टरी में जाके जावासी चलाओ। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। जैसे सपोज आपने /bin हटा दिया पाथ वेरिएबल से, तो आप /bin में जाके भी cp नहीं चला सकते। ठीक है, मतलब करंट डायरेक्टरी में बाय डिफॉल्ट सर्च नहीं करता शेल यहाँ। तो इसीलिए तो हमें ये कंप्लीट पाथ नेम देना पड़ता है। a.out के साथ हमें ये लिखना पड़ता है ना, ./a.out. Dot represents the current directory in Linux and ... represents parent of current directory. ठीक है, डॉट रिप्रेजेंट्स द करंट डायरेक्टरी, इसलिए आपको ./a.out लिखना, a.out नहीं लिख सकते आप,
क्योंकि करंट डायरेक्टरी में बाय डिफॉल्ट शेल लिनक्स का शेल सर्च नहीं करता है एग्जीक्यूटेबल के लिए। अगर आप चाहते हो करंट डायरेक्टरी में भी सर्च करें तो आप पाथ वेरिएबल में डॉट को अपेंड कर सकते हो। आप ये लिख सकते हो पाथ इक्वल्स टू $path कॉलन डॉट। अगर आप ये लिख दोगे, कहीं स्पेस नहीं है यहाँ पे, ठीक है, कोई स्पेस नहीं है। पाथ को नई वैल्यू असाइन कर रहे हो ना, क्या वैल्यू असाइन कर रहे हो पाथ को? नया $path। $path मीन्स जो ऑलरेडी उसका वैल्यू है, जो ऑलरेडी उसका वैल्यू है कॉलन डॉट। डॉट भी आपने अपेंड कर दिया। अब आप ए डॉट आउट करोगे तब भी आपका प्रोग्राम रन होगा, आपको $a.out लिखने का जरूरत नहीं है, ठीक है। तो चलो ये सब लैब में देखेंगे, और तब भी मैं रख दूंगा वो फाइल, ठीक है। और डॉट डॉट का सिग्निफिकेंस ये होता है, पर्पस ये होता है डॉट डॉट का, कि हमें ये जो है ना उसमें काम आता है। सपोज रिलेटिव पाथ नेम बनाने के काम में आता है। सपोज ये डायरेक्टरीज है सब, ठीक है, और राम के अंदर कोई फाइल पड़ी है F1, राम के अंदर फाइल पड़ी है F1 और मुझे OS1 में कॉपी करनी है, ठीक है। तो राम के अंदर F1 है और मैं राम के अंदर ही हूँ, आई एम इनसाइड राम डायरेक्टरी, और मुझे F1 को OS1 में कॉपी करना है। तो अगर डॉट डॉट है तो मैं क्या लिख दूंगा? सिंपली CP F1 डॉट डॉट। तो F1 कहाँ कॉपी हो जाएगी? इधर कॉपी हो जाएगी ना F1। और अगर F2 नाम से कॉपी करना चाहता हूं तो डॉट डॉट स्लैश F2, ठीक है। लेकिन अगर ये नहीं होता डॉट डॉट मेरे पास में, डॉट डॉट फॉर रिप्रेजेंटिंग पेरेंट ऑफ पेरेंट डायरेक्टरी ऑफ करंट डायरेक्टरी नहीं होता मेरे पास में, तो मुझे क्या करना पड़ता? मुझे लिखना पड़ता CP F1 /OS /UMA /Rawat /OS1 /F2, ठीक है। तो टू मेक द रिलेटिव पाथ नेम इजियर, मेरे को ये काम आता है इन कंस्ट्रक्टिंग द रिलेटिव पाथ नेम्स। दिस इज द पर्पस ऑफ डॉट डॉट। और डॉट का पर्पस क्या होता है? इट रिप्रेजेंट्स द करंट डायरेक्टरी, ठीक है। तो ये तो थोड़ा डिस्कशन हम इधर उधर चले गए थे लैब में, तो शेल के बारे में बता दिया आपको, और थोड़ा ये काम आएगा, वैसे फर्स्ट लैब में पढ़ाना ही था ये सब, ठीक है। तो फर्स्ट लैब में डायरेक्टली दिखा सकता हूँ मैं, ये फाइल रख दूंगा और डायरेक्टली ये सारी चीजें आपको सिस्टम पे ऑनलाइन दिखा दूंगा। ये SDCJ का जो फॉर्म होता है उसको स्टूडेंट साइन नहीं करा सकता कि PhD स्टूडेंट खुद जाके सबसे? अनऑफिशियली करा सकता है। अनऑफिशियली, ओके। और रिसर्च ऑब्जेक्टिव 3 भी चलते हैं क्या, या 4 होने चाहिए? आ रहा हूँ ना मैं, क्लास तो ले कितनी लो। देर? ये एक इसका आंसर और दे दो ना, हाँ और ना। चलो अब चलो मुझे मैं ये पढ़ा है मल्टी प्रोग्रामिंग, नेक्स्ट लेक्चर से ले लेता हूँ फिर। कंसेप्ट ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग लेना है हम नेक्स्ट, ठीक है। ओके सर। नेक्स्ट लेक्चर से, और ये सब लैब में दिखा दूंगा जो अभी पढ़ा है ना, ये सब कर करके आपको लैब में दिखा दूंगा नेक्स्ट वीक में, और टीम बना लूंगा। और वीडियो जो है सारी वीडियो रिकॉर्डिंग प्रद्युमन कहीं सेव करते रहना, ठीक है। टीम पे सर चाहे वो रहना। जो सर जो पहली 2 क्लासेस थी ना सर, वो हाँ शायद वो भी शायद आपने डिलीट कर दी हैं, तो वो व्यू नहीं हो पा रही हैं किसी नहीं से भी। नहीं, अभी तो वहां मिलेगी ना, पोस्ट में मिलेंगी पहली 2 क्लासेस। हाँ सर, वो नहीं खुल रही है वो क्लासेस। पोस्ट में क्यों नहीं वो आप खुल रही? पोस्ट में तो आई हुई है। फिर उसमें दिखा रहा है कि सर उसकी लोकेशन हो गई है। क्या? उसमें दिखा रहा है उसकी लोकेशन चेंज हो गई है, मतलब मतलब टीम ओनर ने लोकेशन चेंज कर दी है जब उसको खोलो तो। अरे रिकॉर्डिंग तो मैंने मैडम की डिलीट की थी सारी।
सुनीता मैडम की। फिर वो होता क्या है सर, टीम से जो भी रिकॉर्ड होता है ना वो अपने आप फोल्डर में चली जाती है। तो सर वो उसमें अच्छा, वो भी जावा की डिलीट हो आप गई। डिलीट कर रहे होंगे, तो उसमें साथ तो 2 आपकी भी थी, मिक्सअप थी उसी में, तो आपने वो भी डिलीट कर दी होंगी गलती से। अच्छा चलो, आज से सेव करते रहना। हाँ सर, आज वो से आज से। सेव करते रहना। इस पे चाहे टीम में तो ऑटोमेटिकली जारी है, तो जाने तो तुम अलग से कर लो। जी सर जी। ओके, थैंक यू। अटेंडेंस डाउनलोड कर लो। सर थ्योरेटिकल पार्ट बुक नंबर 1 से ही पढ़ लेना। सब कुछ बुक नंबर 1 से ही पढ़ना है, मतलब गैल्विन से ही पढ़ना है। ओके सर। सब कुछ गैल्विन से ही पढ़ना है। ये जो है, जो भी लैब के लिए रिलेटेड होगा उसके लिए सुमित्वा दास एक बुक है, वो सुमित्वा दास, वो मैं रख दूंगा, बता दूंगा लैब के दौरान, पूछ लेना दोबारा से। चलो डाउनलोड कर लें। आर्यन क्या कर रहा है? थैंक यू सर। मतलब गैल्विन तो हमारी टेक्स्ट बुक है थ्योरी के लिए, और लैब के लिए जो बुक काम में आएगा आपको वो है सुमित्वा दास। उसका भी वो रख दूंगा मैं कोर्स प्लान। सुमित्वा दास उसके लिए बुक है। और लैब के लिए बाकी नोट्स तो मैं प्रोवाइड करता ही रहूंगा जहां तक हो सकेगा। लेक्चर नोट्स, जैसे कि गैल्विन से आपको ये नोट्स पढ़ने के बाद वो जो सेकंड पोर्शन मैंने दिखाया था ना सिलेबस में, वही बुक से पढ़ने का जरूरत रहेगा, स्ट्रक्चर ऑफ ओएस और टाइप्स ऑफ ओएस। ठीक है। ऐसे ही लैब में भी क्या क्या करना होगा, कमांड्स वगैरह बुक से पढ़ना होगा ना, वो सब बता दूंगा टाइम टू टाइम। लेकिन ये 2 बुक काम का है, गैल्विन और सुमित्वा दास। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। नहीं, वो रिकॉर्डिंग सर